today we are talking about product. Actually, when we talk about tourism product, you should know that a product is something which can fulfill the need of a consumer. So this product can be manufactured in a factory, as you have lot of products like suppose you are taking a biscuit, or you are buying a television for your home, or you are buying a smartphone, or you are buying a pen from the bookseller. So these are all products which you buy in order to fulfill your needs. Suppose you have a need of watching news or some entertainment program, you buy a television. You have a need to write, you buy a pen or a copy. You have a need to read, you buy a book. You have a need to eat something and you buy any product like biscuit or something you want to eat. So you have a need to communicate to each other, so you buy a phone. So similarly, there are products which are intangible, because some products that I have given example right now, they are tangible products, because whether it is a pen, a television, a packet of biscuit, a smartphone, so you can touch it, you can feel it, you can take it in your hand. So these are all tangible products. But at the same time, you sometimes buy a service. You sometimes buy a product which you cannot carry as such to your home as you carried a pen or a phone or a TV. So that is called an intangible product. उसको क्या कहते हैं? Intangible product. हाँ, तो intangible होता है जिसको आप as such टच नहीं कर सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू कैन अवेल दैट. सो सर्विसेज आर इंटैंजिबल प्रोडक्ट्स. So when we talk about tourism, in tourism mostly we are offering services. So most of the tourism products are intangible. Suppose you are booking an accommodation in a hotel. So that is a tourism product. But at the same time, once you go to the hotel, you stay there, isn't it? Then you come back home after staying in the hotel for 2 nights or 3 nights. But once you are back home, there is nothing as such in your hand that you have carried with you, because that was a service which you availed and you paid for that service. It is not like a smartphone that is always now with you. You have purchased it for suppose 10,000 or 15,000 और आप ये आपके पास हैं, आपके जेब में है, आपके हाथ में है. होटल में आपने 15,000 खर्च किया, लेकिन आपके पास हाथ में कुछ नहीं आया. तो वो है सर्विस. तो वो फर्क होती है टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रोडक्ट के बीच में. तो अब जब हम टूरिज्म प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है इसकी, जो काफ़ी टाइप्स हैं टूरिज्म प्रोडक्ट्स की. तो जब हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स आते हैं. जैसे अभी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आप उस जगह को एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. तो वहाँ पे जो वो प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल फॉर्म में है. जो वहाँ की कुदरती खूबसूरती है, तो वही उस चीज़ में वो पोटेंशियल देता है कि आप उसको
एज अ टूरिज्म प्रोडक्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वो होते हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स, जैसे कि किसी जगह बहुत बेहतरीन लैंडस्केप होता है, जैसे आपके यहाँ वहाँ पे उस प्रोडक्ट में माउंटेन है, मीडोज़ हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसको वो खूबसूरती देते हैं और उसकी वजह से उसमें वो प्रोडक्ट टूरिज्म प्रोडक्ट का पोटेंशियल आता है। या उसी तरीके से जैसे कि वो जानलांग का है, वो वहाँ पे वुलर लेक है, तो वुलर लेक उसको एक ऐसी खूबसूरती अता करता है जिससे उसको एक पोटेंशियल है टूरिज्म प्रोजेक्ट करने का। या वो फ्लोटिंग, जैसे वो फ्लोट करता है पानी में वो गार्डन, तो दैट इज़ समथिंग नेचुरल। तो ये होते हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स। या उसी तरीके से किसी जगह काफ़ी खूबसूरती होती है, क्लाइमेट बहुत खुशनुमा होता है, मतलब जैसे आप देखते हैं अभी कश्मीर का मौसम भी खुशगवार रहता है, प्रेफरेबली अप्रैल के बाद लगभग अक्टूबर तक, उसके बाद ज़्यादा ठंड रहती है। तो उस वक्त एक क्लाइमेट जो है खुशगवार क्लाइमेट एक अट्रैक्शन बन सकती है टूरिस्ट्स के लिए, क्योंकि सपोज़ हम बात करेंगे राजस्थान की, हम बात करेंगे दिल्ली की, जहाँ पे उस दौरान टेम्परेचर 45 अबोव क्रॉस करता है, तो उस वक्त काफ़ी गर्मी, काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पे, और लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है जब वो उस जगह जाए जहाँ का क्लाइमेट खुशगवार है। तो वो उस वक्त एज अ पुल फैक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट में एक पोटेंशियल होना चाहिए कि ये किसी को पुल करे, मतलब अट्रैक्ट करे अपनी ओर, तो वो पुल फैक्टर आता है इसमें किसमें, जब कोई ऐसी खूबसूरती है, कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से उसमें ये पोटेंशियल आ जाता है। तो हम वो बात करते हैं क्लाइमेट की। तो फिर इसी तरह किसी जगह कोई सपोज़ रॉक्स होती, चट्टानें, जो कि किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत लाजमी रहता है, या स्नो, काफ़ी स्नो जैसे स्कीइंग के लिए ज़रूरत है, तो वो भी तो नेचुरल है। तो अगर किसी जगह स्नोवी स्लोप्स हैं, जैसे गुलमर्ग की हम बात करते हैं, तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं उस जगह जाने के लिए, बिकॉज दे वांट टू टेक advantage of those slopes, and they want to enjoy the beauty, pristine beauty, and take that sports activities which are to be conducive in such snows. तो उसी तरीके से कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसके लिए वो रॉक्स जहाँ पे इन नेचुरल फॉर्म होती है, तो वो एक नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार करता है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे वाटर स्पोर्ट्स रहती हैं, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे राफ्टिंग है और कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए वो नेचुरल फॉर्म में वहाँ पे होता है अवेलेबल पानी उस रफ्तार से जहाँ पे उस टाइप के स्पोर्ट्स के लिए जो मौजूद हैं। तो इसी तरीके से हम फ्लोरा की बात करते हैं या फौना की बात करते हैं, क्योंकि कुछ जगह जहाँ पे लोग बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बर्ड्स या एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट होते हैं, और लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ जाने के लिए, उनको देखने के लिए, तो वो एक नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट है। या किसी जगह फ्लोरा, जैसे कि वहाँ की जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, और उनकी खूबसूरती लोगों को उस जगह की ओर अट्रैक्ट करती है। सो दैट इज़ अगेन अ नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट।
तो इसी तरीके से किसी जगह हम बात करते हैं, जैसे सपोज़ अंडमान एंड निकोबार हैं, वो एक आइलैंड है जो एक ऐसी जगह है जिसके चारों ओर पानी है, समंदर है। तो वहाँ पे कोई भी बाय रोड नहीं जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ एन आइलैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो वो आइलैंड देखने की किसी को अट्रैक्शन रहती है कि हम उस जगह को देखें जहाँ पे चारों तरफ से पानी है, और वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है कोई बाय ट्रेन वहाँ पहुँचे, बाय रोड पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे तो निकलने से या तो शिप या तो एरोप्लेन यूज़ करना है। तो वो आइलैंड्स भी एक अट्रैक्शन रहती हैं कई लोगों के लिए जो आइलैंड्स पसंद करते हैं जाना। तो ये सारे जो अभी तक हमने इनका जिक्र किया, दे आर ऑल नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स। तो ये कुदरत ने ही किसी जगह को नवाजा होता है खूबसूरती से, तो फिर वहाँ पे खाली उस चीज़ के पोटेंशियल को प्रोजेक्ट करना होता है। तो फिर हम बात करते हैं जहाँ पे हम मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो इंसान की क्रिएशन होती है। तो कैन यू थिंक अबाउट एनी मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट? लाइक जैसे सर मतलब होटल बनाते टूरिस्ट के लिए तो वो भी मैन मेड होता है, या रोड बनाते हैं उनके लिए तो वो भी मैन मेड होता है, या उनके लिए ट्रैकिंग के लिए वो स्टिक्स रखते हैं तो वो भी मैन मेड होता है। या फिर सर अगर मतलब कहीं पे पार्क मेंटेन करते उसमें फ्लावर्स लगाते तो फिर मतलब इंसानों का काम रहता है उसमें। राइट। तो so man-made tourism products are created by man for pleasure, leisure और business। सपोज जैसे आपने होटल की बात की, कोई किसी जगह बहुत बड़ा होटल बनाता है, वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्शंस रखते हैं। सपोज वहाँ पे अम्यूज़मेंट के लिए कसिनो हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, या वहाँ पे सपोज बैंक्यूट्स हैं, फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, बाकी सारी चीज़ें के लिए, तो वो अट्रैक्ट करता है। या बिज़नेस के लिए, बिज़नेस मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, एग्जिबिशंस कंडक्ट करने के लिए कोई बड़ा होटल बनाते हैं, तो वो एक मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट कहलाता है। इसी तरीके से जैसे कि हम कल्चर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं किसी जगह को देखने के लिए, और वहाँ उनको पुल करता है, अट्रैक्ट करता है उस जगह का कल्चर। जैसे कि कल्चर में हम बात करते हैं वो साइट्स, वो एरियाज़ जो आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट से काफ़ी अहमियत रखते हैं, या हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करते हैं, मोनूमेंट्स की बात करते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु ट्रैवल different places to see the historical buildings of those places. Suppose many people come to Delhi and go and see the Red Fort, isn't it? Go and see the Humayun tomb, go and see the Qutub Minar. So they are all man-made tourism products, because Qutub Minar is not something natural, it has been made by man, isn't it? So that reveals the culture of this place, that reveals the archaeological we can say history of the place. So yeah, suppose there are some places which are of historical significance जो लोग देखते हैं, और सपोज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जगह जलियांवाला बाग हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं जो फॉरेन से भी आते हैं, तो दे विज़िट दोज प्लेसेस। या हम बात करते हैं म्यूज़ियम्स की, तो म्यूज़ियम भी तो मैन मेड होता है। वहाँ पर फिर मुख्तलिफ वक्तों की चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, तो आर्ट गैलरीज होती हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं, तो ये सारे कहलाते हैं मैन मेड टूरिज़म प्रोडक्ट्स। या आप देखते हैं बहुत सारे टूरिस्ट्स जो आते हैं वो पुरानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखते हैं,
या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सपोज़ का मुल्क का पार्लियामेंट है जो बहुत पुरानी इमारत होती है जिसकी एक तवारीख होती है, तो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो दे आर ऑल एक्चुअली मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स। या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, सपोज़ यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जामिया मस्जिद को देखने के लिए जाते हैं, हज़रत बुल श्राइन को देखने के लिए जाते हैं, तो ये जो हैं ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी तो मैन मेड हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट्स को ताकि वो इन जगहों पे आते हैं, देख सके और उससे उनको उस जगह का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो उसकी भी वाकफियत होती है। और उसमें आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो वो उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कोई दरगाह है, कोई स्थान है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वो भी तो मैन मेड होती हैं। या इसी तरीके से आप फेयर्स की बात करते हैं, आप फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ़ त्योहार जो हैं जैसे कि दिवाली है, ईद है, होली है, लोहड़ी है, और भी बाकी सारे, जैसे कि साउथ इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल, अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल, यूटेंसिल्स फेस्टिवल, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और उन फेस्टिवल्स में काफ़ी शमूलियत रहती है टूरिस्ट्स की, बिकॉज टूरिस्ट्स कम and enjoy their time by celebrating in those festivals. तो वो फेस्टिवल्स भी वो ट्रेडिशंस में आते हैं और ये भी मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट आप देखते हैं, कश्मीर में भी काफ़ी आर्ट्स और हैंडक्राफ्ट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस रह चुकी है, चाहे कश्मीरी कारपेट्स हो, कश्मीरी शॉल हो, पश्मीना शॉल, या कश्मीरी क्रिवल वर्क हो, पेपर मैशी हो, गबा वर्क हो, नमदा वर्क हो, या और कुछ जो एम्ब्रॉयडरी हैं, तो वो भी एक अट्रैक्शन रहती है टूरिज़म में, जिसे मैन मेड टूरिज़म अट्रैक्शंस में आ सकता है आर्ट्स एंड हैंडक्राफ्ट्स। या इसी तरीके से आप फोल्कलोर या डांस की हम बात करेंगे, स्पेशली जब हम फॉरेन टूरिस्ट्स की बात करते हैं, वो जाते हैं किसी जगह और फिर वहाँ का डांस देखते हैं। सपोज़ पंजाब में जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो वहाँ का भंगड़ा देखना चाहते हैं, तो बिकॉज दैट इज़ अ ट्रेडिशनल लोकल डांस ऑफ दैट प्लेस। या इंडिया में कथक हैं, बाकी सारे हैं जो डांसेस में आते हैं। या उसी तरीके से सपोज़ हम फोल्कलोर यहाँ की हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल जो होता था सेलिब्रेशंस के मौक़ों पर, रोफ जिसे कहते हैं, जो हमारी माएँ बहनें अक्सर जब कोई अच्छा सा इवेंट होता है तो वो रोफ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल फोल्कलोर ऑफ दिस प्लेस। तो उसमें जो अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स के लिए वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। तो फिर हम नेटिव लाइफ और कस्टम्स की बात करते हैं। तो नेटिव लाइफ में जो रोज़मर्रा की हमारी डेली रूटीन है, ज़िंदगी है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ हम कैसे बसर करते हैं, हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर डे टू डे लाइफ, तो उसकी एक अहमियत है टूरिज़म के लिहाज से। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो आपका जो वो रहन सहन है वो देखना चाहते हैं। ये नहीं है कि सपोज़ आजकल क्या हुआ है, आजकल आप देखते हैं, आजकल जिसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट टूरिज़म में, वो ये है कि आजकल जब टूरिस्ट आता है किसी जगह, फिर जो लोकल हैं वो उसके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होता है और वो मोर और लेस वही करना चाहता है जो टूरिस्ट, सपोज़ टूरिस्ट को उसने देखा पहन के कपड़े
तो अब वो लोकल अपने कपड़ों के बदले वैसे ही कपड़े पहनना चाहता है। या सपोज उसने टूरिस्ट को देखा वो कुछ और किस्म का खाना खाता है, तो वो भी उसके बदले उसी किस्म का खाना प्रेफर करेगा, खाना लोकल। तो उससे क्या होता है, उससे जो उसका लोकल कल्चर है वो तब्दील होता है। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, फिर कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। फिर जो अमेरिका का लाइफस्टाइल है, जैसे वो कपड़े पहनता है, जैसे वो खाता पीता है, जैसे वो बाकी जो उसका रहन सहन है, जब बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा तो फिर उसमें अट्रैक्शन क्या रहेगी वहाँ जाने की। लेकिन जहाँ पे ये नेटिव लाइफ अपने कस्टम्स पे हैं, जो ना उनका असली रिचुअल्स हैं, असली असली ट्रेडिशन है, उसके बेसिस पे हैं, तब ही वो टूरिस्ट वहाँ पे जाने के लिए अट्रैक्ट होगा। सपोज हम बात करेंगे नोब्रा की, या लद्दाख में ज़नस्कार हैं, तो ज़नस्कार जैसी जगह जो है उसको अभी टच नहीं किया है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ने। मतलब उस वहाँ पे अभी भी उनके जो रिचुअल्स हैं, उनका जो लिबास है, उनका जो खाने पीने का सिस्टम है, वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले था। तो वहाँ पे टूरिस्ट, बहुत फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं ज़ंस्कार, और वो पसंद करते हैं वहाँ पे रहना, ताकि उनको कुछ नई एक्सपीरियंस मिलती है उनसे। वहाँ का जो लिबास है वो भी एंटायरली डिफरेंट है। वहाँ के लोगों को वो देखते हैं एक अलग से कपड़ों में मलबूस, तो वो उनको अट्रैक्ट करता है, दे सी समथिंग न्यू देयर। और टूरिज्म इज़ ऑल अबाउट दिस, व्हेन यू हैव some new experiences, when you have something new, so that is all what tourism means. तो जब वो चीज़ नहीं रहेगा तो फिर जो वो अट्रैक्शन नहीं रहती है। तो ये सारे मैन मेड में आते हैं, मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स में। फिर हम उसके बाद एंटरटेनमेंट पे आते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे रोफ की, या बाकी वो भी उसमें आता है। लेकिन उसी के साथ साथ आजकल एंटरटेनमेंट के लिए अम्यूज़मेंट पार्क्स का मतलब कॉन्सेप्ट है। आप में से किसी ने पहलगाम में अम्यूज़मेंट पार्क देखी, जो जेके बैंक ने डेवलप की थी वहाँ पर? तो अम्यूज़मेंट और रिक्रिएशन पार्क्स में काफ़ी सारी एक ऐसी चीज़ें रखी जाते हैं जिससे लोग रिक्रिएट हो जाए, जिससे लोग एंटरटेन हो जाए। तो उसमें लोकल कल्चर के रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे लोकल डांसेस, लोकल म्यूज़िक, या सपोज चिल्ड्रंस के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरियाज़, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को। कुछ जगहों पे, यहाँ पे तो नहीं है वो कॉन्सेप्ट, गोवा या बाकी जगहों पे है, वहाँ पर उनमें कसिनोस, सपोज गैम्बलिंग के लिए वो क्लब्स जैसे रखे जाते हैं। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स की। तो स्पोर्टिंग इवेंट्स भी एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। आप देखते हैं आजकल, पहले ओलंपिक्स शायद आपने देखे होंगे टीवी पे, वो ओलंपिक्स गेम्स, तो उसमें वो काफ़ी टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। और फिर किसी कंट्री जो उस इवेंट को होस्ट करते हैं, फिर वहाँ काफ़ी मुल्कों से लोग जाते थे उन ओलंपिक गेम्स को देखने के लिए। तो उससे क्या होता था, उस कंट्री को काफ़ी टूरिज़्म बढ़ता था। और दूसरा, जो वो गेम्स वहाँ पे होती थी तो उसके लिए वो स्पेक्टेटर्स भी बनते थे, तो स्पेक्टेटर इवेंट्स होते थे, स्पेक्टेटर टूरिज़्म होता था उसमें। या इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो भी आप देखिए कि कैसे कॉरपोरेट ने उसके साथ क्लब अप किया। जैसे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने टीम्स बनाए, फिर प्लेयर्स को के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेट किया, और फिर उनको मैच होते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग देखने के लिए आते हैं उन मैच को। तो दैट इज़ अबाउट IPL। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आजकल वो पतंजलि बोलती है हम स्पॉन्सर करेंगे IPL, हम उसको होस्ट करेंगे कुछ। तो वो बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो फिर उसमें, क्योंकि उनको पता है कि ये एक टूरिज़्म प्रोडक्ट बन जाएगा, मुख्तलिफ मुल्कों से फिर टूरिस्ट्स आएंगे यहाँ पे, फिर वो उसका स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स के टिकट्स, इवेंट की एंट्री टिकट्स के चार्जेस होते हैं, तो रेवेन्यू भी जनरेट करता है उनके लिए।
और उस सिटी के लिए टूरिज़्म भी जनरेट करता है। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं सिनेमास और थिएटर्स की, वो भी एंटरटेनमेंट में आता है। आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग सिनेमास देखते हैं या थिएटर्स देखते हैं, तो उसमें वो एंटरटेनमेंट टूरिज़्म प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। तो बिज़नेस के लिहाज से आप देखते हैं बिज़नेस टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है टूरिज़्म का, और उसमें मैन मेड जो टूरिज़्म प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ पे बिज़नेस डेलीगेट्स काफ़ी सारे सिटीज़ से, काफ़ी सारे कंट्रीज़ से आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, या कॉन्वेंशंस होते हैं इसके लिए अलग एक टूरिज़्म हैं जिसको कहते हैं माइस। आपको भी एक सब्जेक्ट था ना माइस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सपोजिशंस। तो वो माइस टूरिज़्म भी काफ़ी अरूज पर है, जहाँ पे ये जो अब तो आजकल सारा ऑनलाइन होता है, लेकिन इस वजह से, पेंडेमिक की वजह से, अदरवाइज़ जो बिज़नेस मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी एनुअल जनरल मीटिंग्स या बाकी सारी मीटिंग्स होती थी, फिर वो एक डेस्टिनेशन एक सेट करते थे कि कहाँ पे ये इवेंट करेंगे, फिर वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे। एक तो टूरिज़्म भी होता था और बिज़नेस भी होती थी, या एग्जिबिशन लगाते थे, स्टॉल अपना अपना लगाते थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। जैसे यहाँ कश्मीर के बिजनेसमैन भी उन स्टॉल्स में पार्टिसिपेट करते थे जो दुबई में लगते हैं, या मॉरिशस में लगते हैं, या सिंगापुर में लगते हैं। तो वो भी बिज़नेस टूरिज़्म कहलाता है। आजकल आप देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ अभी कश्मीर में, तो अभी उतना एक्सपोजर उस चीज़ का नहीं है, लेकिन बाहर इस वक्त होता है। वो उसे कहते हैं थीम वेडिंग्स। तो आजकल सपोज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या लीड क्लास होता है, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जाते हैं। सपोज़ किसी की शादी है, वो रहते हैं दिल्ली में, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम ये शादी बैंकॉक में करेंगे, या हम ये शादी मॉरिशस में करेंगे, या सिंगापुर में वो रखते हैं वेन्यू। तो फिर वो उसके लिए जो सारे उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो फिर वो डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं कि वो उसके लिए सारे अरेंजमेंट करते हैं। ये खाली इनको बताते हैं कि हमारे जी इतने गेस्ट्स हैं, सपोज़ किसी के 200 गेस्ट होंगे, किसी के 300 गेस्ट होंगे, तो फिर उन 300 गेस्ट्स का सारा अरेंजमेंट उनको दिल्ली से, चाहे सिंगापुर रखा है, वहाँ तक लेना, फिर वहाँ से वापस लाना, सिंगापुर में उनकी अकोमोडेशन अगर 2 दिन 3 दिन जितने दिन रुकना है वो अरेंज करना, फिर वहाँ पे वेडिंग के रिलेटेड जो सपोज़ फंक्शंस हैं, जैसे डिफरेंट तरीक़ों की होती हैं कल्चर के हिसाब से, तो वो चीज़ें सारी अरेंजमेंट्स वो खुद ही करती हैं। तो उसमें वो चार्टर प्लेन यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर 200 लोग हैं, इसको 200 लोग लेने हैं, तो वो उसके लिए एयरलाइंस होती हैं, चार्टर एयरलाइंस, उनसे जैसे हम लेते हैं ना, कभी एक सुमो निकलता है बांडीपुरा से श्रीनगर, कभी कोई लेता है ना फुल सुमो, उसको कहीं और जाना होता है अगर वो 8-10 बराबर है। तो इसी तरीके से सपोज़ नॉर्मल फ़्लाइट्स जाती हैं दिल्ली से सिंगापुर, लेकिन वो लेते हैं फ़्लाइट जो बराबर वो लेते हैं फ़्लाइट उस हिसाब से, ताकि उसको बुक ही करते हैं, उसमें खाली उनके ही लोग होते हैं। सपोज़ ये 200 उनको पहुंचाने हैं वहाँ, उसके लिए वो चार्टर फ़्लाइट कहते हैं, उसको अरेंज करते हैं। तो फिर उसी फ़्लाइट में फिर वो वापस भी आते हैं 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। तो वो वैसा कॉन्सेप्ट सब डेवलप हो गए हैं टूरिज़्म में, दैट इज़ डेस्टिनेशन वेडिंग्स का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम मैन मेड टूरिज़्म प्रोडक्ट्स में लाते हैं। ओके, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि आप देखते हैं कि आप टूरिज़्म प्रोडक्ट्स कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि टूरिज़्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमने नेचुरल फॉर्म में टूरिज़्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और मैन मेड टूरिज़्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इज़न्ट इट? तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग है वो क्या होती है, किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे ताकि
आप उसको अच्छी तरह से मार्केट में ला सके, ताकि कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। तो उसमें उसको जो हम उसके लिए काफ़ी सारी जो है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मार्केटिंग आसान होती है जब प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हो, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया हो, क्योंकि जितना आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्रेडेंशियल्स उसकी अच्छी हैं, उतना उसको मार्केटिंग उसकी इजी बन जाती है, isn't it? जैसे आप देखते हैं टेक्नोलॉजी में, आप कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए टेकर्स बहुत होते हैं, लोग उसको कंज्यूम करने के लिए तैयार होते हैं, ईगर होते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ नया मिलता है उससे, isn't it? सपोज हम बात करेंगे, जैसे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, एक टूरिज्म प्रोडक्ट था जिसको चाक से लिखा जाता था, फिर वाइट बोर्ड आ गया तो उस पर मार्कर से लिखते हैं, तो चाक से सपोज थोड़ा गर्दा उठता था या कुछ, या फिर रब करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वाइट बोर्ड इजी रह गया। तो इसी तरीके से ये ट्रांजिशन जो हुआ, तो इसके टेकर्स अच्छे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि अगर अभी कोई वाइट बोर्ड बेचने के लिए निकलेगा, दूसरा ब्लैक बोर्ड की बेचने के लिए निकलेगा, ज़्यादा क्या बिकेगा? ज़्यादा वाइट बोर्ड बिकेगा, क्योंकि ये उससे कुछ सुपीरियर चीज़ है। या इसी तरीके से फिर डिजिटल बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मार्कर की भी ज़रूरत नहीं है, और जो सपोज जो लिखा वो या ब्लूटूथ स्टूडेंट्स तक खुद ही स्टूडेंट्स को कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे डिजिटल बोर्ड के साथ, और जो बोर्ड पे लिखेगा टीचर, तो वो स्टूडेंट के डिजिटल चाहे उसके पास स्मार्टफोन है या टैबलेट है, उस पर खुद ही आ जाएगा, या उसमें वो स्टोर रहेगा इंटरनल मेमोरी में, तो उसको फिर सर्कुलेट किया जा सकता है सब में। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो फिर वाइट बोर्ड्स अगर कोई लेके जाएगा और डिजिटल बोर्ड लेके जाएगा, तो पीपल विल प्रेफर टू गो फॉर डिजिटल बोर्ड, isn't it? तो फिर उसमें खाली अफोर्डेबिलिटी का मसला आता है कि मे बी कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा उतना कीमत, तो वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। लेकिन जो डिमांड बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिज़ाइंस में इनोवेशंस लाए, कुछ नए प्रोडक्ट्स लाए सामने, क्योंकि प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ स्टेज रहता है, और लाइफ स्टेज में डिफरेंट स्टेज आते हैं। तो फिर एक स्टेज आता है जब ये एक पीक पे जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये डिक्लाइन होता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी पुरानी होती है या तो फिर ऑटोमेटिकली ये डिक्लाइन पे आ जाता है। लेकिन जब डिक्लाइन पे आता है प्रोडक्ट, उससे पहले ही जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर हैं उसको कुछ ऐसा सोचना है, कोई प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट उस तरीके से नए तरीके से इनोवेट करना है या डिज़ाइन करना है ताकि वो मार्केट में चल सके। सो दैट इज़ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, राइट? So with this we are going to conclude today's topic, and now it is open for discussion. You can seek further clarifications in this regard.